Allowing. So, good afternoon, everyone. I warmly welcome to all the respected members and stakeholders. Today, this is the first session of the FY 2027, which is Quality Management System Training Session, MYQ1. This session is a 1 hour session in a hybrid mode, which is contained three main speakers. First, the CTO, Chief Executive Officer. Second, the CEO, Chief Executive Officer, and third, COO, Chief Operation Officer. First is CTO will covering four main topics: introduction, reference, definition, and company's consent context. Second speaker is CEO, which containing three main topics: leadership, governance, management system planning, and support. Third, COO sir will covering operations, performance evolution, and improvement. After the session, we will covering question answer and feedback session. I shall now proceed to invite our esteemed speakers for their perspective session. Over to you, CTO sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The platform is yours. Now you proceed. Okay, I am sharing my screen. Okay, is my screen visible? Anyone? No. Yes, it's visible. Okay. Okay, I have shared the document of invitation letter of QMS. So is it visible to you all? Yes, it's visible. Okay. So first of all, thank you for giving me this opportunity of sharing the presentation as a speaker. So I am the first speaker, that is Chief Technology Officer. I will go through introduction of SLH QMS manual, because this meeting is based totally upon QMS, that is Quality Management System. So we will talk about the management system and its quality. So it's a training session where we are going to discuss about management and its quality. That's why it is called Quality Management System. So there will be many inner layer in this training session that we are going to see. I have prepared a Zoho slide, a presentation on this QMS. Through that, I am going to show my presentation on the topic of introduction, reference, definition, and company's context. So here I am sharing my training session. Yes, QMS training session number SLH M1Q1 F527. So this is the first slide. Okay, I am playing it in a slideshow mode, in a full screen mode. Yes. So this is the first slide where we are going to discuss about the QMS training session. As a CTO, I am giving you the executive summary of slide, that is introduction, reference, definition, and company's context. This will be this all four topic will be covered under the QMS. That is the introduction of QMS, reference of QMS, definitions used in QMS, and company's context used in QMS manual. Under company's context, there will be subtopic, that understanding the company and its context with reference to QMS manual or with reference to quality management system. We are going to discuss about the company and understand the company and its context. Second will be, that is 4.2, will be understanding the need and expectation of interested party. So we are going to see the interested party and other many layers come under the
quality management system and understanding the need and expectation. 4.3, determining the scope and quality management system. So we are going to discuss about the scope. Scope is a very wide term that we will see in later presentation. And QMS in process. The process involved QMS that we are going to see. So this is the summary of slide. So I am going on slide number 1. Just a minute. Respected CTO, sir. Just a minute. Yes. Just for the information of all the participants, in the absence of our chief operation officer, the task assigned to him shall also be shouldered or beared by the presenter who is who is under the way of presentation, and along with that, you are expected to make your pronunciation loud and bold so that you could feel yourself exhausted at the end of training session. Okay, go ahead. So where was I? Introduction. That is 1. 1.1 is SLH and Company LLP, the firm. यहाँ पर SLH को हमने कंपनी बोला, अरे SLH को हमने कंपनी, LLP और द फर्म, ये 3 टर्म है. ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, पर हमने इन तीनों को 1.1 में एक ही लिया हुआ है कि सैटर्न लॉ हाउस एंड कंपनी LLP, द फर्म. यहाँ हम द फर्म रेफरेंस के लिए ले रहे हैं कि इसको हम द फर्म कह रहे हैं. क्यों? ये हमारा इंट्रोडक्शन है. तो इसमें हम ये बताएंगे कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर रजिस्टर्ड है, मतलब MCA पोर्टल में इस पर रजिस्ट्रेशन हुआ है. सो MCA पोर्टल इज अ स्टैंडर्डाइज पोर्टल जो कि बहुत से क्राइटेरिया होने के अगर आप फिल्टर कर लेते हैं तो फिर वो कंपनी एक फर्म कहलाती है या फिर वो कंपनी LLP कहलाती है. तो ये SLH हमारा ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी और LLP फर्म बन गई? ऐसा क्या हुआ कि इसको हम यहाँ पे द फर्म रेफरेंस के तौर पे कह रहे हैं? वो ये है कि इसमें देखिए आगे लिखा है CIN नंबर 1.1.2 में, 1.1.3 में लिखा है यूनिक ट्रेडमार्क लोगो. तो ये वो क्राइटेरिया है जिन पे कि अगर आपका ये है, CIN नंबर इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 7 और सेक्शन 12 के तहत रजिस्टर्ड होता है. अगर आपने कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है और आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो वो कंपनी एक्ट सेक्शन 7 और 12 के तहत वो रजिस्टर्ड माना जाएगा. ये होता है पहला क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया है कि ट्रेडमार्क और लोगो. अब देखिए ट्रेडमार्क और लोगो, वैसे फर्स्ट क्राइटेरिया तो MCA पोर्टल बताया कि अगर आप MCA पोर्टल पर रजिस्टर हो कि नहीं. सेकंड है CIN नंबर, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. थर्ड आपका ट्रेडमार्क लोगो. ट्रेडमार्क लोगो में क्या होता है कि ऐसे बहुत से ट्रेडमार्क आपको लेने होते हैं, पेटेंट लेने होते हैं, कॉपीराइट, डिजाइन एक्ट की उस लोगो का डिजाइन, उसकी टैग लाइन, या फिर उसमें कोई कलर इन्वॉल्व है तो कौन सा कलर आपने पेटेंट लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट का कोड क्या है ब्लैक कलर का. तो ये सब के रजिस्ट्रेशन के बाद ही एक कंपनी फर्म कहलाती है. तो ये वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है. तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत हम लोगो और टैग लाइन डिसाइड करते हैं कि हाँ इस कंपनी की ये टैग लाइन और लोगो होगी. पेटेंट एक्ट 1970 के तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमने ये पेटेंट लिया है कि ये कंपनी और ये लोगो ये हमारे अंडर है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन हमारा है. थर्ड है कॉपीराइट एक्ट 1957. इसमें कॉपीराइट लेते हैं, इस नाम से मालूम चल रहा है. डिजाइन एक्ट में ऐसा होता है कि जो आपने लोगो डिजाइन किया है या जो उसकी और भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सिर्फ उसका लोगो नहीं, जो उस फर्म की सोशल आइडेंटिफिकेशन है, उसकी एंटिटी है, वो सब डिजाइन एक्ट 2000 के तहत आता है. तो इसको पूरा कंप्लीट बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम. अगर SLH की QMS मैनुअल में जाएंगे तो वहां पर आपको है ये सब SLH QMS मैनुअल के थ्रू ही आ रहा है.
मैंने लास्ट स्लाइड में रेफरेंस के तौर पे ये लिखा हुआ है, वो आपको दिखेगा बाद में। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम के तहत हमारा जो IPR है, ये सब एक्ट अपने अंदर समाये हुए हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1919, पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957, डिजाइन एक्ट 2000। ये एक अम्ब्रेला है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम वर्ड इस्तेमाल किया गया SLH मैनुअल में। तो रिजीम वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया बिकॉज रिजीम मतलब होता है एक अम्ब्रेला की तरह वो है, और उसके अंडर ढेर सारे राइट हैं, एक्ट है। उन एक्ट के नाम मैंने आपको बता दिए, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन। तो इन सब अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस आप क्लियर करते हैं तो वो द फर्म कहलाती है। इसलिए हमने SLH and C LLP को द फर्म बोला, क्योंकि हमारे पास MCA पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड है, हमारा खुद का DIN नंबर है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत लेना होता है। हमारा LLP IN मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी हमारा है। CIN नंबर भी है और हमारा ट्रेडमार्क लोगो भी है। तो हम सारी क्वालिफिकेशंस पूरी करते हैं। 1.2 दैट इज ISO 9001:2015। इसको हमने एज ए फ्रेमवर्क माना है। फ्रेमवर्क, देखिए फ्रेमवर्क वर्ड हमने अगर इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि कोई भी जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो पहले उसका फ्रेम तैयार होता है, उसमें बीम्स एंड कॉलम पड़ते हैं। तो एक बार वो फ्रेमवर्क बनने के बाद उसमें फिर वॉल, पार्टीशन वॉल, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस ऐड किए जाते हैं उसको और रिफाइन करने के लिए। यहाँ फ्रेमवर्क हमने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि 901 और 2015 ये हमको एक फ्रेमवर्क दे रहा है, हमारे SLH मैनुअल, QMS मैनुअल का फ्रेमवर्क दे रहा है। वो भी आगे की स्लाइड में भी आएगा कि वो किस टाइप का फ्रेमवर्क है। और ये बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी देता है। जैसे कि एक वर्ड है जो हम अक्सर अपने नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते हैं, SOP, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन प्रोसीजर। तो SOP का मतलब अगर लेमैन की भाषा में देखें तो SOP मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि फिक्स हो गई है, और जब भी उससे कोई प्रोसेस गुजरेगी तो वो उस सप्लाई चेन को बिना डिस्टर्ब किए वो इनपुट से प्रोसेस करे, आउटपुट तक जाए, और उसका Q&A और फीडबैक सेशन के साथ वो प्रॉपर चले एंड तक। जैसे कि हमारा ट्रेनिंग सेशन एग्जांपल के तौर पे ये स्टार्ट होता है, इनविटेशन बनता है, वीडियो इनविटेशन बनता है, मीटिंग सेट होती है, फिर सब लोग उसी सप्लाई चेन में आते रहते हैं और एंड तक हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो इसका एक फ्रेमवर्क पहले बनाया गया होगा। तो जो 9001:2015 है, इसने फ्रेमवर्क दिया हमारे QMS मैनुअल को, और फिर यही मैनुअल हमारी बहुत सी SOPs को जनरेट करेगा। तो जो इसमें नॉमेनक्लेचर आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कस्टमर क्या होता है, स्टेक होल्डर क्या होता है, इंटरेस्टेड पार्टीज क्या होती है। हमें इन सब की नीड और एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई क्यों करना है? सेटिस्फाई एंड नीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, स्टेक होल्डर एंड इंटरेस्टेड पार्टीज। तो इसमें सेटिस्फाई का भी अलग मतलब है, नीड का भी, एक्सपेक्टेशन का भी, और 1.2.1 से लेकर 3 तक का भी। तो हम कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर, स्टेक होल्डर और इंटरेस्टेड पार्टीज में क्या डिफरेंस है? उससे पहले कॉन्सेप्ट है कस्टमर और कंज्यूमर का। कस्टमर वो हर एक एंटिटी है जो कि कंज्यूमर नहीं है। क्या चीज कंज्यूमर नहीं है? कंज्यूमर उसे बोलते हैं जो सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, या फिर हम ये बोले उसका एंड यूजर है, उसके एंड में है एकदम वो। तो एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमर आपका हो सकता है कि आपने एक शॉपकीपर से कोई सामान लिया एज अ कस्टमर, क्योंकि वो शॉपकीपर है, आप कस्टमर हो, लेकिन उस सामान का कंज्यूमर कोई और है घर पे, तो आप कस्टमर हो गए। जो कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर होगा। तो कस्टमर एक एंड यूजर नहीं है, हो भी सकता है अगर वो कंज्यूमर के तौर पर आए, लेकिन कस्टमर अगर बोला जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर है, वो एंड नहीं है। एंड होगा जब वो कंज्यूमर बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर का। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो सप्लाई चेन है, मीटिंग को इनिशिएट किया गया, इन्विटेशन जनरेट किया गया, सब चीजें करेगी। तो जो इससे सप्लाई चेन में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्टेक ओन कर रखा है यहाँ पर,
इस सप्लाई चेन का जिन्होंने स्टेक होल्ड ओन कर रखा है उसको बोलेंगे स्टेक होल्डर। उस फ्रेमवर्क का जो सप्लाई चेन है उसको, उसके स्टेक्स को होल्ड करने वाला स्टेक होल्डर है। तो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है? इंटरेस्टेड पार्टीज वो पार्टीज हैं जो कि उस सप्लाई चेन की स्टेक्स को होल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं। उन पार्टीज को हम बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज। जो अभी तक स्टेक होल्डर नहीं है लेकिन वो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, फिर कल को वो स्टेक होल्डर बनेंगी, फिर वो सप्लाई चेन क्रिएट करेंगी, उसमें अलग अलग एसओपी आएगी, फिर हम लोग सर्विस करेंगे डिलीवर कस्टमर के लिए, और वो कस्टमर कंज्यूमर तक लेके जाएगा सर्विस को, तो कंज्यूमर एंड होगा। तो ये 1.3 तक हो गया। नेक्स्ट है, अगर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मेरा टाइम एक्सीड होगा तो प्लीज मॉडरेटर मैम प्लीज इन्फॉर्म मी। 1.3 is definitions typically used by। definitions मतलब देखिए जो होम पेज था इसमें 1.3 पे डेफिनेशंस लिखा है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेशंस जो कि आती हैं क्यूएमएस ट्रेनिंग सेशन, सॉरी जो हमारा क्यूएमएस मैनुअल है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं, स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है वो आती है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो थर्ड है डेफिनेशंस। अब क्यूएमएस मैनुअल में लिखा हुआ है कि जो डेफिनेशंस है वो वैसी डेफिनेशंस हैं जो कस्टमर द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं, स्टेक होल्डर द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं, प्लस ऐसे भी स्टेक होल्डर जो लीगल इकोसिस्टम में हैं, प्लस जो मार्केट प्लेस में इस्तेमाल करी जाती हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेज, स्कूल, वेरियस एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल करी जाती हैं, और जो जिनका ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है। ये सब वही डेफिनेशंस हैं जो इन पांचों के द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि एसओपी एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड वर्ड है जो कि आप एसओपी बोलोगे तो वो पूरी दुनिया में उसका एक ही मतलब है। तो जो हमने एसएलएच क्यूएमएस मैनुअल में डेफिनेशन इस्तेमाल करी हैं वो सब वही डेफिनेशंस हैं जो एक आम तौर पर कस्टमर इस्तेमाल करता है, स्टेक होल्डर, इन लीगल इकोसिस्टम, मार्केट प्लेस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल स्टैंडर्डाइज वो हैं, वैसी डेफिनेशंस हैं। 1.4 में आता है कि हम कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, नहीं किस तरीके से काम नहीं कर रही है, कंपनी काम कर रही है, उस काम करने के बाद उस काम का एनालिसिस करना, उसको मॉनिटर करना, उसको रिव्यू करना, और ऐसे फैक्टर के बारे में बात करना जो कि हमारी एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए एबिलिटी को अफेक्ट करना और एफिशिएंसी को अफेक्ट करना अलग है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एबिलिटी को अफेक्ट करने की। इसका मतलब जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं सप्लाई चेन में, स्टेक होल्डर, उनकी एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत से इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशू होते हैं जिससे कि हम एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, एनालाइज करके हम उसको मॉनिटर करके रिव्यू करके उसके फैक्टर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम ग्रोथ कैसे करें। तो ऐसे बहुत से इश्यूज होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसके बारे में हम आगे पीपीटी में देखेंगे। स्वॉट एनालिसिस होता है, पेस्ट एनालिसिस होता है जिसमें कि हम एबिलिटी को एनालाइज करते हैं। उसमें B2C भी अपना मेजर रोल प्ले करता है, B2B भी करता है, P2C, C2C। B2C इज बिजनेस टू कस्टमर, B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, P2P इज पीयर टू पीयर और पर्सन टू पर्सन, C2C इज कस्टमर टू कस्टमर। देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशनल कंट्रोल, किसी भी चीज के इनपुट आउटपुट और ऑपरेशनल कंट्रोल ही होते हैं। अगर एक टेक्नोलॉजी के टर्म से बात करें तो जो सीपीयू है, सीपीयू भी उसी तरीके से काम करता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि आप उसको कोई इनपुट देते हो डेटा रॉ फॉर्म में, फिर वो उसको प्रोसेस करता है कि आपने क्या दिया 01 की लैंग्वेज में, फिर वो उसको आउटपुट के फॉर्म में ले आता है। तो ये तीन चीज तो स्टैंडर्डाइज है, ये नॉमेनक्लेचर हर जगह चल रहा है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने मैन पावर को कैसे, उसकी एबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं मॉनिटर करके, और उसके बारे में बात करेंगे। ये वो सारे रेफरेंस हैं। देखिए सेकंड स्लाइड है रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अब जितने भी बातें करी जाएंगी वो सब इन्हीं रेफरेंस पे बात करी जाएगी। ये 9001 9000 2015, 9004 2000,
देखिए ये 2050 जो पहला है 2.2.1 ये फंडामेंटल और वोकेबलरी की बात करता है, मतलब ये उस नॉमेनक्लेचर की बात करता है जिसके बारे में जो हमने अडॉप्ट किया है क्यूएमएस मैनुअल में, ये हमने वहां से अडॉप्ट किया है 9001 2015 से। हमने 9004 और 2000 से क्या अडॉप्ट किया है, गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। लोगों मतलब लोग नहीं, स्टेक होल्डर्स जो लोग सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हमने इस्तेमाल करी हैं, उनका हमने रेफरेंस लिया है 9004 2000 से। 9001 2011 से हमने लिया है ऑडिटिंग के गाइडलाइंस। एक्ट 25 1961 से हमने लिया है लीगल प्रैक्टिशनर के लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स। एक्ट 12 से हमने लिया है 17 से लॉ रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वह सप्लाई चेन में सर्विस किस तरीके से डिलीवर होगी, उसका फ्लो, उसकी सप्लाई। फ्लो अलग है, सप्लाई अलग है, वो बाद में आएगा, लेकिन हम यहाँ वर्ड इस्तेमाल करेंगे सप्लाई। एक्ट 21 2000 से हम लॉ रिलेटिंग आईटी के बारे में हमने अडॉप्ट किया है। यूपीसीएनसी ये एक्सप्लेनेटरी नोट है, ये बाद में आएगा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज को किस तरीके से अडॉप्ट किया, ये आगे वाले स्लाइड में आएगा, ये एक ब्रॉड टर्म है। थर्ड डेफिनेशंस, हम डेफिनेशंस पे क्यों आए फिर से, हम 1.1 में 1.3 में आ चुके थे, फिर हम इसलिए आए हैं बिकॉज वो इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशंस था। ये डेफिनेशन है एसएलएच क्यूएमएस की डेफिनेशंस कौन कौन सी ली गई, मैंने आपको बताया था एसओपी, उस तरीके से बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो कि स्टैंडर्ड ली गई हैं, वो है पीडीसीए साइकिल। इस तरह की बहुत साइकिल होती हैं, पर यहाँ हमने लिया है पीडीसीए साइकिल। एसएलएच क्यूएमएस मैनुअल के क्लॉज 4, 5, 6, 7 में प्लान के बारे में बताया गया है कि प्लान किसे बोलते हैं। जब हम 4th क्लॉज में हमारे सीईओ 4th नंबर, नहीं 4th तो क्लॉज नहीं, ओके प्लान, सॉरी, जो प्लान है वो प्लान क्लॉज 4, 5, 6, 7 वहां पर मेंशन्ड है। अगर आप रेफरेंस के तौर पर जाकर देखेंगे तो आपको प्लान के बारे में दिख जाएगा कि वो क्या कवर कर रहा है जिसको हम प्लान कह रहे हैं। ऐसे ही 8th नंबर है ऑपरेशन, इसको एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑपरेशनल काम करता है, डू मतलब होता है करना, लेकिन हम यहाँ पर ऑपरेशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे क्यूएमएस मैनुअल में ऑपरेशन एक स्टैंडर्डाइज वर्ड है, हमारे लिए ऑपरेशन का मतलब है कुछ, इसलिए हम यहाँ पर ऑपरेशन बोल रहे हैं जो स्टैंडर्ड है। चेक, ये क्लॉज 9 से लिया गया है। चेक इज लाइक आप परफॉर्मेंस इवेल्यूशन कर रहे हैं, जो लोग सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं उनकी एबिलिटी का। ये पीडीसी साइकिल एक तरीके से एबिलिटी को इम्प्रूव करने का ही वो है, एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल करी जाती है। एक्ट में हम एग्जीक्यूट करते हैं, फोकस्ड ऑन, ये क्लॉज 10 के बारे में लिखा हुआ है, इसको हम एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, एसओपी हो गई, पीडीसी हो गई, डेफिनेशंस हो गई। हमारा 4th पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द कंपनी एंड इट्स कंटेक्स्ट, कंपनी को अंडरस्टैंड करना और कंपनी के कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना। ये क्या है, जब कोई कंपनी काम करती है अपने स्टेक होल्डर और अपने पूरे यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, जिसमें कि हीट और नॉइस फैक्टर कम होता है, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए कि हीट और नॉइस फैक्टर उसमें आ जाए, तो हम उन चीज़ों को कैसे स्पॉट करेंगे, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, उसका रिव्यू कैसे करेंगे, उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो ये एक तरीका है जो हमें मैनुअल बताता है कि इस तरीके से हम उसको स्पॉट करके सॉल्व करेंगे। तो ऐसे लिखे लिखे इसमें 2 टेबल बनी हुई है, टेबल इंटरनल इशू और दूसरी टेबल का कॉलम है एक्सटर्नल इशू। इंटरनल इशू ऐसे कौन से इशू हैं जो कि हमारी एबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी डिलीवरी कम हो रही है या फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। एफिशिएंसी कम नहीं हो रही है, हम बोलेंगे कि हमारी यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और फ्रिक्शन, नॉइस, हीट फैक्टर बढ़ रहा है। तो ऐसे कौन से इंटरनल इशू हैं? पहला इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम इंटरनली देखें, बिकॉज ये इंटरनल रो का मामला है, इंटरनल इशू का मामला है, तो हम इंटरनली देखें कि
कितना परसेंट मार्केट शेयर हमारा है, अगर कम होगा तो वो एक इंटरनल इशू है जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो परसेंटेज कम है। प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं होगी, लेकिन हाँ जो लॉन्ग टर्म हमारा लॉन्ग रन है वो इफेक्ट होगा। एम्प्लॉयज का इंटरनल इशू, फर्ज करिए कि दो इंटरनल हेड हैं, कंपनी के अंदर ही दो ब्रांच के हेड हैं जिनके आपस में कोई इंटरनल रिजॉल्व वो प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो एम्प्लॉय का इशू कहलाएगा कि दो ही हेड है आपस में विद इन द कंपनी जो आपस में ही फ्रिक्शनलेस नहीं काम कर पा रहे, उनके बीच में फ्रिक्शन है, हीट और नॉइस ज्यादा है, तो वो भी एक फैक्टर इफेक्ट करेगा हमारी कंपनी की ग्रोथ को। थर्ड है वैल्यू एंड कल्चर। वैल्यू एंड कल्चर, देखिए वैल्यू का मतलब होता है कुछ, कल्चर का मतलब होता है कुछ। वैल्यू मतलब होता है कि आपकी मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, उस कंपनी की जो एथिकल वैल्यू, जो कोर वैल्यू है वो क्या है, और उस वैल्यू को हम रिपीट करते गए, रिपीटिशन में लाते गए, तो वो कल्चर बन जाती है। तो वो कल्चर बन जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कल्चर एक नेगेटिव कल्चर बन गया हो और वो कंपनी के ही इंटरनल इशू की तरह आ करके उसको अफेक्ट कर रहा हो, उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा हो। तो वैल्यू एंड कल्चर का भी ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन एंड नॉलेज, अगर हम अपनी कंपनी में इनोवेट नहीं करेंगे और अपनी नॉलेज को एनहेंस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एक इंटरनल इशू है कंपनी के ग्रोथ का। स्वाट एनालिसिस हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है इंटरनल इशू में, बिकॉज स्वाट का मतलब होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये इंटरनल इशू है कि हम अपनी कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या देख रहे हैं, वीकनेस क्या क्या देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या देख रहे हैं और थ्रेट्स क्या क्या देख रहे हैं। अब इसके पहले चलते हैं एक्सटर्नल इशू। Hello, हेलो, I'm sorry to interrupt. Kindly summarize your point in 5 minutes. Other members are waiting for the participant. मैम। एक्सटर्नल इशू हमने क्यों बोला गया, क्योंकि ये बाहर के वो वाले फैक्टर हैं, जो कंपनीज के बाहर के फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ को। वो है कस्टमर एंड सप्लाई। अगर कस्टमर और सप्लायर या कंज्यूमर का भी अगर हमारा फीडबैक अच्छा नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटर्नल इशू में आएगा। मार्केट एंड कंपटीशन, अगर मार्केट में हम कॉम्पीट कर रहे हैं और जब वहाँ का कंपटीशन है, वहाँ पर मोनोपोली अगर है, तो वो इफेक्ट करती है हमारे कंपनी के ग्रोथ को। मार्केट कैसा है वो इफेक्ट करता है हमारी कंपनी ग्रोथ को। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर नहीं है। रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बन जाती है जो कि बाद में हमारी यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है, तो वो रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल इशू में आएगा। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी कोई बाहर ऐसी आ गई, आउटसाइड द कंपनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो आज निकल वो हमको एडवर्सली इफेक्ट करेगी। कल्चरल एंड सोशल, अगर बाहर एक्सटर्नली विद आउटसाइड द कंपनी, द फर्म, अगर कल्चर एंड सोशल हमारा बैलेंस नहीं है तो वो भी इफेक्ट करेगा। बिकॉज अगर सोसाइटी वैसी नहीं है, जहाँ का कल्चर हमारा मैच नहीं कर रहा है कंपनी के डिमांड, तो डिमांड और नीड सप्लाई को वो पूरा नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। अगर हम इन इश्यूज को ध्यान रखें तो हमारे एक्सटर्नल इशू नहीं आएंगे। पॉलिटिकल इशू बाहर का चल रहा है, अगर हम उनको रिजॉल्व कर लें तो नहीं आएंगे हमारे इशू। इकोनॉमिकल इशू नहीं अगर रिजॉल्व कर लें, सोशलॉजिकल इशू, टेक्नोलॉजिकल इशू, लीगल इशू और एनवायरमेंटल इशू, अगर हम ये रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमारे एक्सटर्नल इशू सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज, this is slide number 6. We are going on slide number 7. Yeah, understanding the need and expectation of interested parties. इंटरेस्टेड पार्टी की हम नीड और एक्सपेक्टेशन की यहाँ बात क्यों कर रहे हैं, पहले वो बताएंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो नीड और एक्सपेक्टेशन है क्या। हम यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारी ग्रोथ, अगर हमारा स्वॉट एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस अगर सही तरीके से जाता है, लेकिन उसका आउटपुट सही नहीं आ रहा है, उसका ऑपरेशन सही नहीं जा रहा है,
तो भी ये सही चीज नहीं होगी। तो इंटरेस्टेड पार्टीज में देखिए लिखा हुआ है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें हम देखेंगे कि प्राइस, रिलायबिलिटी और वैल्यू के टर्म्स में हम कितने स्टेज पर हैं, किस लेवल पर हैं कि हम प्राइस को किस लेवल पे अकाउंटेबल कर पा रहे हैं, रिलायबिलिटी और वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर मतलब बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेस मतलब ऐसा दोनों बिजनेस जिनके पास खुद का GST नंबर हो। तो बिजनेस टू बिजनेस, जब बिजनेस टू बिजनेस डील करता है तो उन दोनों के पास GST नंबर होता है और वो लोग आपस में डील करते हैं। तो वो लोग खास तौर पे देखना चाहिए उन्हें क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या, लॉजिस्टिक हमारा किस तरीके से जा रहा है। जब P2P होता है मतलब ओनर पर्सन टू पर्सन देखते हैं तो वो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को देखते हैं, जो कि देखना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड मैनुअल बता रहा है। एम्प्लॉयज में क्या होता है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं विद इन द कंपनी वो शेयर्ड वैल्यू और सिक्योरिटी देखते हैं। सप्लायर में C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट देखते हैं, वो इंटरेस्ट पे जो बेनिफिश उनका आ रहा है वो देख रहे हैं। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी में कंप्लायंस रिपोर्टिंग देखी जाती है, मतलब जो लॉज बन रहे हैं, जो रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अगर वो आपस में डील कर रहे हैं तो कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज I think yes, this is second last slide. Determining the scope of QMS. स्कोप एक बहुत बड़ा टर्म जिसके अंदर बहुत चीजें आती हैं, उसके फंक्शन, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, फ्रिक्शन, बहुत सी एक वाइड स्कोप है। तो उसको हम QMS को स्कोप को जानने के लिए हमको बहुत चीज देखनी पड़ेगी। तो जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यू के बारे में बताया वो भी स्कोप के तहत आता है। इंटरेस्टेड पार्टीज जो हमें इंटरेस्टेड हैं स्टेक होल्डर बनने के लिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं मालूम होगी तो एज ए स्टेक होल्डर हम उन्हें कभी भी ओन नहीं कर पाएंगे। प्राइस जस्टिफिकेशन फॉर एनी रिक्वायरमेंट, अगर किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट कंपनी में आती है तो हम उस कितने प्राइस में हम कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, उसको क्या हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ये देखना होगा। टाइप्स ऑफ सर्विस, हम QMS में किस टाइप की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सप्लाई चेन में हम किस टाइप की सर्विस एंड तक पहुंचा रहे हैं, कस्टमर तक या कंज्यूमर तक, कैसे हम पहुंचा रहे हैं वो भी देखना होता है। QMS एंड प्रोसेस, कोई प्रोसेस को पूरा करने के लिए इनपुट, आउटपुट, ऑपरेशनल कंट्रोल और एप्रोप्रिएट मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग होती है। इनपुट, इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी तो हमने इनपुट लिया कि डेटा इनपुट करना है कि हाँ इतने इतने लोग इस मीटिंग में आएंगे तो हमारा इनपुट हो गया। आउटपुट क्या हुआ, जब मीटिंग हो रही तो ये आउटपुट है। इसकी भी में जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, जो इसके बीच में जो वर्क हुआ है कि ये इन्विटेशन लेटर जनरेट हुआ, यूट्यूब पे लिंक जनरेट हुआ, ये सब ऑपरेशन तय आ रहा है कि इसके बीच में क्या किया गया, उसकी प्रोसेसिंग। और एप्रोप्रिएट मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग होगा कि जैसे जब ये मीटिंग खत्म होगी तो आखिरी में एक इस्तेमाल किया जाएगा फीडबैक एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो वो हमारा फीडबैक क्या रहा उसको हम अलग अलग तरीके से मेजर करें और मॉनिटर करें कि वो किस तरीके से हमारा फीडबैक जा रहा है, कि जो हमने इनपुट दिया और जो हमारा आउटपुट आया उसको एनालाइज करना कि उसका कंट्रोलिंग में कहाँ कहाँ फ्लॉज थे, आउटपुट में कहाँ कहाँ फ्लॉज थे, इनपुट में कहाँ कहाँ फ्लॉज थे, ये निकालना, लोगों से फीडबैक पूछना और उस पर नेक्स्ट टाइम इवॉल्व करके अपनी ग्रोथ को इंश्योर करना। तो थैंक यू फॉर दिस। टिल 4.4 I have done my PPT on the regard of CTO. Okay, thank you for the wonderful slideshow. Now let's move to CEO sir to proceed with the slideshow, and the platform is yours. Okay. Respected CTO, sir, kindly make the screen available for necessary customization to myself. Okay. From here onward, I will have to lead the burden of CEO and Chief Operation Officer. So yes, you may have a cracked voice during this presentation, but I would try my best so that the concept hiding behind the cracked voice could get easily perceived by all the participants. So in nutshell, our CTO, who is comparatively a new inductee in our business model, our service delivery model, has a fascinating
presentation on the QMS part first. Okay. From here onward, before going to hold this particular session, I have shared a QMS soft copy to all of you. You may access those copy for your understanding. That particular soft copy is under the process of amendment to, so that we could absorb necessary database specification which we have inculcated and cultivated plus harvested during the presentation of our last financial year delivery session. So you will, by a continuous process of amendment, we will reach at the zenith of a document that is organic document devoted to guide and dictate our region of command and process in the name of QMS manual, Saturn Law House manual. Generally we say Saturn Law House manual, that is far and less ISO certified 9001 of 2015 ISO specification model dedicated to quality management system. तो हमने उसको अपने सटर्न लॉ हाउस मैनुअल के तौर पे हम उसको आप कहते हैं, और वो हमारे व्यवहार की को गाइड करता है, ताकि हम अपने बिहेवियर को, अपने डिलीवरी को या अपने वैल्यू एडिशन के प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और परिमार्जित कर सकें। तो जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ साइकिल का नाम दिया स्वाट थ्योरी, पीडीसीए साइकिल। तो पीडीसीए को हम अगर पकड़े यहाँ से, जैसे इसमें एक दो और वर्ड था, आई एम जस्ट मेकिंग करेक्शन, or you can say I'm by way of making my submissions, I am just creating a corrigendum. जैसे जो 1.1.1 में MCA पोर्टल पे रजिस्टर की बात थी, उसके बाद CIN था। CIN वर्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कॉर्पोरेट, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो CIN नंबर मिलता है, और जब कोई LLP अंडर द स्टैट्यूट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर होती है, तो वहां पे LLPIN पिन नंबर मिलता है। तो LLPIN को भी हम CIN बोलते हैं, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन comes into existence after registration, either its registration be in Company Act 2013 or through Limited Liability Partnership Act. These kind of organization does have permanent character. So if there is a corporate or any organization which has a permanent character, means thereby it enjoy corporate identity. You may say that particular organization, that this X organization is having its own CIN number registered under Company Act, or its own CIN number registered under LLP Act. Okay. Back to the cycle, back to the newly recently used nomenclature or abbreviation of in the form of SWOT theory, PESTEL theory, and PDCA. SWOT theory, you have already familiar personally. Perhaps you have been familiar with the SWOT theory. SWOT theory, strength, weakness, opportunity, and threat. ये कॉन्सेप्ट जनरली इंडिविजुअल लेवल पे यूज किया जाता है। तो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों का पैरामीटर हम चाहें तो अपने इंडिविजुअल लाइफ से भी हम कॉर्पोरेट लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो SWOT थ्योरी वहां पे इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में काम आती है। वैसे ही पेस्टल थ्योरी था, पेस्टल जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट था, जिससे एक्सटर्नल इश्यूज किसी कॉर्पोरेट के अपने फॉर्म के सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके एक्सटर्नल इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। कहेंगे इससे एग्जांपल दीजिए,
तो जैसे सपोज कोई एक्स पर्सन है, आउटसाइड ऑफ द फर्म है, उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है या उनकी कोई इकोनॉमिकल या सोशल बायसनेस है या ओरिएंटेशन है, तो जनरली ऐसी चीजों को हम लोग अपने प्रैक्टिस में अडॉप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेस्टल एनालिसिस से गवर्न है, क्योंकि पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या सोशल ओरिएंटेशन हमारे एक्सटर्नल इश्यूज को गवर्न करता है। सपोज किसी के साथ हम B2B रिलेशन में आने की इच्छा रखते हैं और उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, तो चांसेज है कि हमारे अपने अगर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है तो उनके साथ हमारा एबिलिटी टू कन्वर्ट द लीड इनटू डील वुड बी अफेक्टेड। तो हमारे एक्सटर्नल इश्यूज को रिजॉल्व करने में हम पेस्टल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। आता है पीडीसीएस साइकिल। पीडीसीएस साइकिल एक क्यूमियस में, जो आईएसओ सर्टिफिकेशन का क्यूमियस एक स्टैंडर्ड नाम, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन नाम है, उसमें ही यूज किया गया है पीडीसीए साइकिल। तो पीडीसीए को बोलेंगे प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। बैक ऑफिस के तौर पे एंड एज अ सीईओ मेजर कंट्रीब्यूशन एमिनेट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइकिल। तो इसमें देखेंगे से प्लान है, तो प्लानिंग, फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्लान, फर्स्ट लेटर इज पी स्टैंड फॉर प्लान, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट। तो प्लान, जो प्लान कहेंगे, प्लानिंग में कौन कौन से क्लॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूएमएस इन्वॉल्व होते हैं। तो क्यूएमएस की कॉपी हमने आप लोग को शेयर कर दिया है क्लिक प्लेटफॉर्म पे, वहां से डाउनलोड करके, और डेफिनेटली आप लोग अपने पास रखिए। उसका प्रिंट आउट का कॉस्ट फॉर्म बियर कर लेगी, बिल हमको रेज कर दीजिएगा। तो जब तक कि अगला क्यूएमएस आपको अवेलेबल नहीं हो जाता आफ्टर मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट, आप उससे गाइड और एंड इनलाइटेंड हो सकते हैं। तो उसमें देखेंगे तो जो क्लास 4 है, जो कंपनी एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट है, यहां से शुरू होता है और क्लास 7 तक, दैट इज सपोर्ट। ये जो क्लास 4, 5th, 6th एंड 7 है, ये प्लानिंग का पार्ट है। तो जब भी कभी कोई एसेट या कोई इंक्वायरी या कोई लीड फर्म के पास आती है, तो क्यूएमएस मैनुअल से इनलाइटेंड रहते हुए हम प्लानिंग सेगमेंट में देखते हैं कि हमारा कंपनी कॉन्टेक्स्ट, जिसमें नीड, एक्सपेक्टेशन, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टी है, चाहे वो कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, इंटरेस्टेड पार्टी हो या स्टेक होल्डर हो, उनके नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं क्लास 4 के तहत। क्लास 5th में हम देखते हैं कि हमारी लीडरशिप एंड गवर्नेंस का, आप कहेंगे क्लास 5th में, जैसे हम अगर यहाँ पे स्क्रीन शेयर मोड में लगा के आपको हम अपने सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करें, तो आप पाएंगे मैडम यादव, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, it's visible. ओके। तो आप देखेंगे क्लास, जनरली एट दिस स्टेज I do have a slide of this particular clause, but in nutshell I am just showing you where you do get reference point for the topic under presentation. So class 5th, 6th and 7th, actually these are the points which have been allotted to myself for giving presentation, but I have to bear the burden of rest of the class also. So in time mode, I have made some necessary corrections or change in the way of presentation by way of showing this. तो आप देखेंगे क्लास 4th में कंपनी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़े थे। तो प्लान का जो सेगमेंट है, प्लानिंग में हम देखते हैं कि हमारा कस्टमर क्या सोचता है, उसके नीड क्या है, उसको डिलीवर करने के लिए हमारा जो लीडरशिप साइकिल है वो कैसी है, यानी एसेट का मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, एसेट का हेड कौन है, एसेट कैसे कैसे कितने प्लेटफॉर्म से होके गुजरती है, उस प्लेटफॉर्म से गुजरते समय क्वालिटी
इन्हेंसमेंट या क्वालिटी में डिग्रेडेशन इन टर्म ऑफ ड्राफ्ट या इन टर्म ऑफ डिले ऑन द पार्ट ऑफ सिस्टेमिक डिले हो या ऑन द पार्ट ऑफ मैन पावर की इनएफिशिएंसी के चलते हो या इग्नोरेंस ऑफ द प्रोसेस के चलते हो, तो क्वालिटी इश्यूज कौन कौन से राइज हो रहे हैं और ऐसे किसी इश्यूज या इवेंचुअलिटी को मीट करने में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स जो और मैन पावर है उनको कैसे उसमें इंगेज करें बतौर आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और उसकी कंसिस्टेंसी को सुनिश्चित करने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी और उन्होंने क्या किया। जैसे सीआरएम प्लेटफॉर्म पे हम रियल टाइम में डेटा एंट्री पॉइंट लेते हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा प्लानिंग का एक सेगमेंट होता है, उसमें प्लानिंग में ही आता है कि फिर सेकेंड ये लीडरशिप एंड गवर्नेंस क्लास 5 से ऐसे कहें कि प्लानिंग में पहला होता है क्लास 4, ये पूरा इन्वॉल्व होता है, सॉरी इसको ब्लू मार्क से, प्लान में ये भी पी का पार्ट है, ये भी पी का पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है, 6 भी प्लानिंग का पार्ट है, 7 और 8 भी प्लान का पार्ट है। इतना प्लानिंग में आता है, यानी इतने सेगमेंट को बैक ऑफिस से हम देखने का प्रयास करते हैं और इन सबके अपने यूज केस है, आप लोग को प्रैक्टिस में देखने जानने को मिलेगा, आगे भी मिलेगा और भी इस पे कई बार प्रेजेंटेशन में आएगा। स्पेसिफिकली हम लोग डिडक्टिव मेथड में उसको प्ले करके दिखाएंगे। अभी ये एक तरीके का, सॉरी उसको हम इंडक्टिव मेथड में वहां दिखाएंगे। ये डिडक्टिव मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसमें हम अपने टॉपिक को अपने व्यवहार से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंपनी कॉन्टेक्स्ट हो गया, लीडरशिप एंड गवर्नेंस में कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। अब इसका डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा जो हमने आपको भेजा है, इस पे देखिएगा। ये हम लोग इसको टाइम एंड अगेन लौट के इस जगह पे आएंगे। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके का गीता है, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जैसे एक तरीके का बाइलास के बहुत ही नजदीक है। इसको बोलते हैं, कंपनी के एंगल से देखें तो बोलेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक तरीके का मतलब पॉलिसी लेवल पे है, बाकी एओए अलग से भी बनता है। फिर क्वालिटी पॉलिसीज है, उसके बाद देखेंगे कि प्लानर बैक ऑफिस से क्या देखता है, मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग करता है, इसमें कहाँ कहाँ पे खतरा हो सकता है और आया तो, या कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, उसको कैसे वो रिजॉल्व करेगा। और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हम मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कस्टमर के, कस्टमर क्लाइंट में कस्टमर कंज्यूमर में अंतर है। जैसे सपोज एक लिटिगेंट है, मिस्टर एल लिटिगेंट है कोई, ठीक है, वो बूढ़े हैं, 85 साल के हैं, वो कोर्ट नहीं आते, एडवोकेट को नहीं पता एडवोकेट के बारे में, तो उन्होंने अपने बेटे को अपने केस में पैरवी करने के लिए रखा, तो वो हो गया मिस्टर पी, और वो पैरवी करने वाला आके एसएलएस से मिलता है। तो सटन लॉ हाउस के लिए जो पी है ये क्या है, ये हो गया कस्टमर, इसने सर्विस खरीदा है, मगर उस सर्विस कंज्यूम कौन कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है बूढ़े जिनका केस है, मिस्टर एल। तो लिटिगेंट हमारा कंज्यूमर है और पी हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम कि हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो किसके लिए है, सिर्फ कस्टमर के लिए है कि हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए भी है। तो इसको भी मैनेजमेंट सिस्टम में हम प्लान करते हैं। जैसे जो सर्विस लेके आया उसको आपने इंसेंटिवाइज किया, मगर क्वालिटी ऑफ लिटिगेशन में फोर्स नहीं है, तो उसका राइट ऑफ सीकिंग रेमेडी विल गेट अफेक्टेड और ये बहुत ही डिजास्टर्स होगा। इसलिए कस्टमर के लिए नहीं बल्कि कंज्यूमर के अल्टीमेट पर्पज को भी हमें सर्व करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट। सपोर्ट में लास्ट ट्रेनिंग सेशंस के दौरान भी हमने इस पे एक ब्रीफ में रखा था, उसमें रिसोर्सेज आपको डिटेल्ड आपको कॉपी मिल गई है, उसमें देखिएगा कौन कौन से रिसोर्सेज है। आपको 60 में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे क्लास 7 है तो क्लास 7 में आप आएंगे तो आपको रिसोर्स में क्या क्या आता है वो मिल जाएगा। जैसे क्लास 7 देखिए यहाँ शुरू है, हाँ, रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी में, सपोर्ट में रिसोर्सेज में क्या क्या है,
जो रिसोर्सेज डिटरमाइंड हमने किया है या प्रोवाइड किया, अगर उसमें कोई चीज कम भी आता है तो उसमें फिर फर्दर में ऐड करता है। इट्स इंक्लूड व्यक्ति, सारे टीम मेंबर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये भी एक रिसोर्स होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ये सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज में आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिसेंटली हमारे एक टीम मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा पोस्ट अपलोड किया, चाहे कुटुंब पे हो, कुटुंब पे भी आप लगातार देखें तो इसमें भी बड़ी अच्छे कंटेंट आए। ये सब नॉलेज है, ये सब रिसोर्स है, रिसोर्स नॉलेज रिसोर्स है, फर्क के लिए काम आता है। इसमें हमारे हेड सपोर्ट ऑफिसर हो, हमारे सीपीओ हो, इन्होंने काफी क्वालिटी कंटेंट देखी, ये सब है। ये सब देखिए रिसोर्स ऑफ द फॉर्म में आते हैं। यही रिसोर्स जब औरों के लिए वैल्यू जनरेट करने लगे तो कहेंगे ये एक एसेट हो गया, तो इसको हम इसलिए डिजिटल एसेट बोलते हैं। वैसे ही लिंक्डइन पे देखिए, लिंक्डइन पे बहुत ही अच्छा कंटेंट था, मैडम सीआरओ की तरफ से पोस्ट किया गया था, तो उसको जैसे हम दिखाएं यहाँ पे, तो जैसे ये है अच्छा, नेटवर्क इफेक्ट जनरेट करने के लिए फॉर्म का कोई भी मैन पावर कंटेंट अपलोड करता है तो हम लोग उसको रिपोस्ट कर देते हैं। अब जैसे इनके पोस्ट की हम बात करें, सो ओके सॉरी, आ जाएंगे, एग्जांपल दिखा रहे हैं कि रिसोर्स के लेवल पे, तो ताकि ये प्रेजेंटेशन वाइब्रेंट लगे, नहीं तो थियोरेटिकल ज्यादा लगेगा, तो हम दिखा दे रहे हैं। सो ओके, तो ये मैडम सीआरओ का डिजिटल कंटेंट है, देखिए काफी फैसिनेटिंग और बहुत ही अच्छा ये कंटेंट है। इसका सेंटेंस पैटर्न ड्राफ्ट ये काफी बेहतर है। ये बताता है कि धीरे धीरे अब ये टीम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रेडी टू गो है। तो इस तरीके के देखिए कंटेंट है, और विजिबिलिटी भी है। बहुत बड़ी बात है, एबव 10 ओवरऑल फॉलोअर्स लेवल 265 है, मगर लाइक 32 है, अपने आप में बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो देखिए ये सब चीजें इन्होंने, और यहीं पे इन्होंने मूड कोड की फाइल भी अपलोड की है, बाकी के टीम मेंबर्स भी देख सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं इस पे। पार्टिसिपेशन में क्या परफॉर्मेंस रहा है ये बहुत मायने नहीं रखता, पार्टिसिपेशन मायने रखता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमने दिखाया है, ये हमारे उसी प्रोसेस का पार्ट है जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। अब आते हैं जैसे इसी में है, नेक्स्ट है, अच्छा बोलने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी है बट हम एफर्ट कर रहे हैं अपनी बात रखने का। तो इसमें जैसे हमने कहा ना, पीपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट है, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग को खुद ही वहां मिल जाएगा, कंटेंट देख लीजिएगा। तो ये सारा का सारा सपोर्ट में है। अब जैसे क्लास 8 यानी फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 7 इज पार्ट ऑफ प्लानिंग बैक ऑफिस। The back office are the person who has been assigned a task of back office has to plan for this segment, which includes company context, leadership and governance, class 6 management system planning and class 4 support। इसके यूज केस हम लोग बिल्कुल से डिस्कस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब आता है जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो ऑपरेशन, जिसको डू कहते हैं, डूज एंड डोंट, क्या हमें करना है, तो उसको ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए क्लास 8 में आपको मिल जाएगा। आप देखिए ऑपरेशन में क्या क्या शामिल है, तो आप देखेंगे यहाँ से ऑपरेशन शुरू होता है। ये हम आपको बता रहे हैं कि जो हमने सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर की है उसको कैसे पढ़ना है, देखना है, और अपने नॉमेनक्लेचर को कैसे इनहेंस करना है, इंप्रूव करना है, बहुत हेल्प मिलेगा। ऑपरेशन में देखिए, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्लास 1 8.1 है। गोल्डन रूल्स है, इसमें समझने के लिए है आपको, ये सैटेलाइट्स वे ऑफ थिंकिंग है, ये इसको हमने डेवलप किया। ये 2017 का डॉक्यूमेंट, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं और इसको अब लागू करने का समय आ रहा है, तो हम लोग इस पे लगातार डिस्कशन करते जाएंगे।
ये जो अमेंडमेंट प्रोसेस उसमें इसकी नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, बाकी कंटेंट सारा लगभग सेम है. तो यू विल नॉट बी वरीड that what would be the impact of the learning which you have earned or achieved by way of comprehending this content. Again, I am assuring you the content of this present QMS manual shall be almost 99.99% same after amendment. During the amendment, I am just making a number system workable so that I could refer my team to go and see the relevant clause from the QMS and make your work better and effective. Okay, तो ये हमारे ऑपरेशन के पार्ट में सब आएंगे. रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये ऑपरेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसको लगातार हम लोग लर्न करेंगे. तो आप एक बार यहाँ पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, हम बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ऑपरेशन में ये सारी चीजें होती है जिसको हम लोग देखते हैं, यानी इसको समराइज करें छोटे में. तो ऑपरेशन को आप देखें कंटेक्स्ट में. ऑपरेशन इंक्लूड्स ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होगी किसी केस को फाइल करने में. प्रोडक्ट जो रिलीफ होगा उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन तो कर लिया प्रेयर को, अब उसको हम डेवलप कैसे करेंगे. तो जो प्लीडिंग का ग्राउंड है, प्लीडिंग है, उसमें हमें क्या क्या पैरा रखने पड़ेंगे ताकि हमारी रिलीफ को सपोर्ट करे और हम अपने अल्टीमेट डिजायर को क्रिएट कर सके, इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, डिजायर इम्पैक्ट क्रिएट कर सके इन द वे ऑफ अचीविंग an excellent order from competent court in case of litigation segment, otherwise meeting the requirement of the customer in case of non-litigation segment. Control of externally provided process, products and services. Suppose किसी लेवल पे आप किसी और फोरम में गए, वहां पे सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, वहां का प्रक्रिया ही अलग है, तो वहां पे जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस है उसको कैसे, उसके डेविएशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब ऑपरेशन का पार्ट है. इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्लोर पे बंदा होता है उसकी ऑपरेशनल इफिशियंसी कैसी है, उसको कैसे हम मैक्सिमाइज करें. इसके लिए इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, मेमोरी, इन्वायरमेंटल लर्निंग बहुत काम आती है. और इसी को कहा जाता है कि जस्ट इन टाइम में आप कितने स्मार्ट हैं, किसी भी हार्डशिप को हैंडल करने के लिए आपकी टीम कितनी प्रिपेयर्ड है. जो फ्लोर पे गया, हमने कहा ABC ऐसे ऐसे काम होना है, मगर वहां पे कुछ और ही दिख रहा है, तो उस इवेंचुअलिटीज को कैसे हैंडल करेंगे, ये ऑपरेशनल सेगमेंट पे क्लास 8 में आपको मिल जाएगा. ये एक तरीके का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगी. फिर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन. सपोज कहीं पे गए, वहां पे कहा गया कि हमने ये रिलीफ बना कर दिया, उस कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस सेक्शन में ये रिलीफ अलाउ नहीं करेंगे. तो आप अपने सर्विसेज को कैसे कस्टमाइज करेंगे, वो भी ऑपरेशन का पार्ट है. कभी कभी ऐसा होता है, वैसे रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कोई सर्विस हमें रिलीज करनी है, वहां पे डिलीवर करनी है, किसी को असाइन करना है, लेटरल एंगेजमेंट लेना है, तो कैसे. वैसे कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट, सब करने के बाद भी कुछ ऐसे आउटपुट्स आ रहे हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब पे मीट नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे डेविएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे. सपोज कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, या वहां पे से एक लोअर कोर्ट का केस था हम लोग के पास, म्यूटेशन अपील, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी उस पर केस नंबर रजिस्टर नहीं हुआ है, कुछ महीने हो गए. बाद में हमारे ऑपरेशन चीफ ने पता किया तो पता चला कि उस पर स्टेटस केस नंबर असाइन नहीं किया गया. तो नॉन कंफर्मिंग आउटपुट था, उसको फिर बैक ऑफिस से इंटीग्रेट के इंस्ट्रक्शन पे देयर कोर्ट से प्रेस किया गया कि लॉर्डशिप, इन दिस केस you have been directed to decide the matter expeditiously, but so far, after passing of the sufficient time, you have not even assigned a case number to this case. Should I go to High Court for into the jurisdiction of contempt? After hearing this, are the sentence similar to this? Court has listed case for next date along with case number.
तो देखिए ये था नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स को हमने कैसे कंट्रोल किया। ओके, वैसे ही आता है 9th परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हमारी टीम कहीं पे भी किसी भी लेवल पे डिजिटल, फिजिकल या ऑफिस या रिसर्च किसी भी लेवल पे जो भी परफॉर्मेंस कर रही है उसको इवैल्यूएशन करना चाहिए और करते भी हैं। जैसे हमने लिंक्डइन पे किसी के पोस्ट को शेयर करके दिखाया, कुटुंब पे हमने शेयर करके दिखाया, यूट्यूब पे ऑलरेडी हम लोग का सब्सक्रिप्शन मोर देन 75 है, वीडियोस मोर देन 23 है, एवरेज बेसिस पे मंथली व्यूअर्स 8.5 घंटे का है, 500 के ऊपर व्यूज है, हमें विजिट पे जाने की जरूरत कम है। ये सारे के सारे और किसी जितने भी उस पे कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी आप देखेंगे तो उनके काफी अच्छे स्टैटिक्स है। तो ये सब चीजें देखिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से आते हैं काफी अच्छे डैशबोर्ड पे। इसमें कुछ लोगों के कंटेंट काफी अच्छे गए हैं तो यहाँ पे बताता है कि ये उनका परफॉर्मेंस बेहतर है, कुछ एल्गोरिदम्स है। तो इस तरीके से देखिए आप व्यूज 300 के अब हमारे कुछ कंटेंट ने परफॉर्म किया है, कुछ राइजिंग राइट पे है। तो ये सारी चीजें भी देखिए परफॉर्मेंस का पार्ट है। और आप देखेंगे एनालिटिक्स में थोड़ा सा दिखा दे आपको तो 540 व्यूज हमारे पर मंथ बेसिस पे है। अब ये देखिए आपके कन्वर्टिबिलिटी को बेहतर करेगा, लीड्स को कांटेक्ट में, कांटेक्ट को अकाउंट में, अकाउंट को सेल में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, आपकी सेलिंग पिच को सपोर्ट करेगा। योर चैनल गॉट 540 व्यूज इन लास्ट 28 डेज। 500 लोगों ने देखा है, हम भले अपनी जगह पे स्टैटिक्स है। तो ये कुछ हमारे ऐसे थे देखिए कंटेंट जो हमने भी यहाँ पे बोला परफॉर्मेंस इवोल्यूशन है, एक्चुअली इवैल्यूएशन होना चाहिए यहाँ पे। ये यही सब छोटी छोटी चीजें हम अमेंड कर रहे हैं इवैल्यूएशन में, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। और क्या होता है परफॉर्मेंस का, इंटरनल ऑडिट होती है जिसमें हम कहते हैं टीम का एमएससीपी से डिटरमाइंड होगा, और मैनेजमेंट रिव्यू, ये जो हम लोग ट्रेनिंग सेशन करते हैं इसके जरिए हम अपने क्लॉज 9 जो कि आता है चेक, PDCA cycle में C stand for check which is consist of class 9 that is performance evaluation। तो PDCA cycle प्लान में हो गया क्लास 4 to 7, D मतलब डू क्या करना, ये हो गया ऑपरेशन क्लॉज 8, और C stand for check जिसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आता है, यानी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को लगातार चेक करना पड़ता है। हमारे डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म हमें इसमें काफी हेल्प करते हैं, इंटरनल ऑडिट में बहुत सपोर्ट करता है। ये 27 में आप लोग भी इससे परिचित होते जाएंगे और अपने परफॉर्मेंस को और इनहेंस करने में ये आपको मोटिवेट करेगा। और लास्ट आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में जो नॉन कन्फॉर्मिटी और करेक्शन एक्शन है, यानी ये इम्प्रूवमेंट, आई फॉर इम्प्रूवमेंट है, 10 इम्प्रूवमेंट है, सॉरी एग्जीक्यूशन इम्प्रूवमेंट है। पीडीसीए का लास्ट जो ए एक्ट, मतलब हम अपने इन सब ऊपर के प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने प्रोसेस को और कैसे इंप्रूव करें, यही होता है क्वालिटी मैनेज करने का सिस्टम। और इसको हम अपने सेटन लाहौस क्यूएमएस मैनुअल के जरिए लगातार इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये छोटा सा कलेक्टिव प्रेजेंटेशन था, इसको स्लाइड पे सहयोग हमारे दिया था हमारे सीटीओ ने, स्लाइड भी है हमारे पास, बट इसको हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं लिया क्योंकि टाइम मिसमैच हो जाता। तो क्लास 5 से लीडरशिप गवर्नेंस ये ऑलरेडी बता दिया आपको, लीडरशिप कमिटमेंट, क्वालिटी प्रोसेस में ये आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगा। 6 मैनेजमेंट सिस्टम क्लास 6 है, ये रिस्क, अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग फॉर चेंज, ये हमने वहां पे डिस्कस किया क्लास 6। क्लास 7 में है सपोर्ट, पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट। आपको ऑलरेडी हमने वहां पे सिलेबस में आपने देखा होगा जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, देखिए 7th में सपोर्ट है। वैसे ही आप 8th पे जब जाएंगे, 8th पे हमारा लास्ट था, 8th 9th 10th ये हमारा
ऑपरेशन चीफ का प्रेजेंटेशन था, वो किन्हीं कारणों से अवेलेबल नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने प्रयास किया। इस तरीके से आप पाएंगे। अगेन हम कहेंगे कि जब अभी ये जो प्रेजेंटेशन आज का है, इसके बाद आपको जो कॉपी हमने अपने क्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग को प्रोवाइड कराई है, आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले प्लेटफॉर्म में जाइएगा, इसकी कॉपी मिल जाएगी। इसको खोलेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए हमने खोला, ये पूरी कॉपी यहाँ पे है। इसकी हार्ड कॉपी जरूर से रखिए, और ये FY 2027 में मेजर रोल प्ले करने वाला है और हमारे नॉमेनक्लेचर वर्डिंग को बेहतर करेगा। इन बातों के साथ हम एक अपने आज के प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे। यस, हमारी आवाज उतनी ऑडिबल नहीं थी, बट कोशिश किया, और इस प्रेजेंटेशन को लाउड इनफ करने में, ऑडिबल बनाने में हमें एक डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ रहा है, बट होप सो यू विल बेयर द डिस्कम्फर्ट इफ यू हैव caused any just because of I'm having a cracking voice। तो इसके साथ और एक चीज और कि हमारे टीम ने आने वाले जो अच्छे, खैर इसको हम लास्ट में कर लेंगे, फिलहाल में आज के लिए ये हमारा था। इस पे ओवर टू यू CRO मैडम, यू में टेक क्वेश्चन आंसर सेशंस and rest of the process we shall follow as per our standard operating procedure. Okay, over to you, CRO madam. Thank you, sir. Thank you for the wonderful session. Now let's move to the question answer. The team member, if you have any question, you may ask. Starting from Mr. CPU, sir. If you have any question, you may ask. Am I audible? Yes, yes. No, ma'am, I have no question. Okay, thank you. HRC, sir. If you have any question, you may ask. Am I audible? HRC, sir. Okay, next. CTO, sir. If you have any question, please ask. Yes, ma'am, I have a question. Okay. The question is, while I was going QMS manual, मैंने ये देखा कि PDCA साइकिल का पूरा इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्लॉज 4, 5, 6, 7 P है, फिर D वाला अगला 3 क्लॉज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा मैनुअल ही बना हुआ है PDCA साइकिल पर। तो क्या है ऐसा, और PDCA साइकिल को ही क्यों चूज किया गया, और बहुत सी साइकिल्स हैं? Okay. Thank you. HSO, sir. If you have any question, you may ask. Audible? HSO, sir. I think he is not available. Any question from your side, Madam Siado? Yes, I have question. I need to understand the pestle and sword theory in the legal manner. Means how they apply in the legal matter. Okay. As per usual, our usual practices, I will respond on all questions in one go. Mr. CPU has no questions, but you must have some questions, so that by way of raising questions, you could get an opportunity to interact with the rest of the party audience on the screen. So our team, which average is very good and very favorable, have miles to go. So whenever and wherever opportunity created or generated, you are free to utilize those opportunity, because by way of raising questions, your face will be visible on the screen, and you will feel yourself okay. HSO, HSO? sir. Yes. Do you have any question? नो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है,
असलते मैं Okay. कुछ इस पे कहना चाहता था कि ये जो फीडबैक मीटिंग फीडबैक में ले ले क्लोज करके, एक दो बस 3 मिनट का और At 5 last. मिनट का टाइम है आपके पास। ओके ठीक है। मिनट के बाद फीडबैक आप ले लेंगे। ओके, एक्चुअली ही इज वेरी सीनियर मेंबर among us. So feedback shall be taken from our head support officer, and you must be amazed that he is one of my close savior in the bygone days, which I have shared with my loneliness. In my loneliness. Okay. तो सीपीओ के लिए था, तो ये क्वेश्चन, ये अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने की एक हैबिट बिल्डअप करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले कल में और भी एग्रेसिव प्रेजेंटेशंस का इरा आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऑगमेंटेड वॉइस एआई जनरेट कर रही है। एलएलपी पे आपने देखा होगा, गूगल का एलएम मॉडल जो है। अब हमें अपने प्रेजेंटेशन को और भी इंप्रेसिव, और भी ऑर्गेनिक, और भी कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, ताकि हम रोबोटिक ह्यूमन से compete कर सके, या ह्यूमनॉइड रोबोट से, ह्यूमनॉइड रोबोट से compete कर सके। तो प्रेजेंटेशन के लेवल पे रेस्पेक्टेड सीईओ, CTO is also expected to convert their presentation in global language, because we have a vision to provide service across the at least 3 continents. So we have to develop our global language at par with other firm team, other firm members. तो language को रखे. Definitely these kind of sophisticated behavior are not meant to serve a very common people at the policy level. Yes, through pro bono team, I will be in positions to serve them, but at this level of quality, consistency, these digital contents are created to serve the global audience. So language should be powerful and impactful enough so that we could count ourselves among best of the homegrown law firm in the country. Okay, next time, your presentation must be at least above 30% in global language of your choice, except to mother tongue language, so that I could cater and could reach other audience too. CPO, it was a suggestions for yourself. Next time you just break your cycle of fears and make questions. Might be question, their question, the degree and quality of the question may be not up to mark, but you have to raise question, because overall it is a learning platform. Okay, next, HRC, उनको फीडबैक का ऑप्शन मिला है, वहां पे दे लेंगे। वेरी गुड। CTO, अच्छा, इसमें हमारे हेड, जो HRC हेड रिक्रूटमेंट सेल, सॉरी, HRC के लेवल पे क्वेश्चन नहीं आया है, बट वो एक अच्छा क्वेश्चन रेज करते हैं। उनके इससे प्रीवियस सेशंस में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रूव किया है कि ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पर्सन एंड हैव जेन्युइन एंड सीरियस क्वेश्चंस टू रेज एंड शेयर विद our team members. So we should give him full credit for utilizing the question and answer session. Due to some reason, he is not in position to raise question. Come to the next point, CTO. PDCA cycle, जिसपे ये बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर QMS का। तो PDCA साइकिल ही क्यों? एक्चुअली मैनेजमेंट का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो पे प्रोफेसर बागची का कंटेंट मिलेगा IIT चेन्नई की तरफ से। QMS पे पूरे 52 वीडियोस हैं। अलग अलग कालखंड में मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स डोमिनेंट रोल प्ले किए हैं। आफ्टर अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट 14th to 15th century,
उसमें देखेंगे कि इंडस्ट्रियल ईरा के अराइवल के बाद मैकेनाइजेशन, एनर्जी को रेगुलेट करना सीख लिया गया था, उस एनर्जी को मैकेनाइज किया गया, उस मैकेनाइजेशन को ऑटोमेट किया गया, असेंबली लाइन पे किया गया, उसको ऑटोमेट किया गया, और अब तो स्टिमुलेशन का ईरा है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए। कहीं पे एसपीसी अडॉप्ट किया गया, कहीं पे डेड एंड फीस, फिर एसपीसी, फिर टीक्यूएम मॉडल आया, फिर क्यूएमएस आया, कहीं पे सिक्स सिग्मा आया। ऐसे से अलग अलग बिजनेस के मॉडल हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के मॉडल हैं। हम लोग क्यूएमएस मॉडल को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये सर्विस ड्रिवेन जो बिजनेस मॉडल है उसको स्टैंडर्डाइज करने में काफी कंफर्ट देता है। इससे भी अच्छे मॉडल होंगे दुनिया में, हम ही नहीं कहते, बट क्यूएमएस हमारे एशियन कॉन्टिनेंट को काफी हद तक कैटर करता है। जापान साइड में जाएंगे तो अलग मैनेजमेंट मॉडल है, अमेरिका में अलग मैनेजमेंट मॉडल है। वी एज अ ग्लोबल साउथ नेशन आर बेस्ट suited to QMS process based on PDCA साइकिल। तो इसलिए पीडीसीए के अंदर जो क्लॉज है उसी से मिलके क्यूएमएस हमारा मैनुअल बनता है, और ये कारण है कि वी आर इंडिया बेस्ट लॉ फर्म, तो हम पीडीसीए साइकिल को ही क्यों चुने हैं। डिड यू गेट योर आंसर our CTO? Yes, sir. Okay, next point from the question PESTEL and SWOT theory. Okay, SWOT analysis आमतौर पे किसी व्यक्ति को या अपने टीम मेंबर को, सपोज हमारे सीपीयू हैं, डेमोग्राफिकली वेरी illustrious career is waiting for him। तो आप देखेंगे कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, वीकनेस के अकॉर्डिंग थ्रेट जनरेट होता है, रिस्क। तो जैसे हमने उनसे कहा कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी आती है, तो अगर वो क्वेश्चन रेज करने का स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अगर वो थ्रेट या डरेंगे, तो अगर वो वीकनेस दिखाएंगे तो वो थ्रेट में कन्वर्ट होगा। ये हो गया स्वॉट थ्योरी। कंपनी के लिए भी ऐसे ही आता है, स्वॉट थ्योरी को कंपनी के लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पेस्टल थ्योरी है, पीडीसीए हमने बता दिया, प्लान करना, डू माने ऑपरेट करना, फिर चेक करना लगातार, और उससे जो डेटा है उससे फिर से इंप्रूव करना, पीडीसीए साइकिल आता है। पेस्टल साइकिल में होता है क्या कि एक फर्म है, सपोज हमसे किसी ने कहा कि साहब ये पार्टी में आप एडवोकेट पैनल ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा माइंड उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बैंड मॉडल है। सपोज कोई रूलिंग पार्टी के हम प्रो है, और हमारे कंडक्ट में कुछ वैसे आइडियोलॉजी में हमारी पी मतलब पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, ई मतलब इन्वायरमेंटल, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, कुछ वैसे ही है जो उस पार्टी को सूट करती है। तो अगर हमारा कोई कस्टमर या क्लाइंट किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से है तो वो हमें प्रीफर नहीं करेगा। तो इसलिए पेस्टल थ्योरी की मदद से हम अपने एक्सटर्नल्स इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी भी है, जैसे हमने SLS 26.0 वर्जन लिया क्योंकि हमें पता था कि जो डेटा सॉवरेंटी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बाकी लोग यूएस के सेंस में एंजॉय करते हैं, इंडिया के सेंस में हम नहीं कर सकते। तो हमने इंडिया का जो सॉवरेन डेटा है उस पर रिलाई करने के लिए हमने इंडियन सॉफ्टवेयर के तहत पूरे सिस्टम को बिल्डअप करने का प्रयास किया, और हमारा ये एंटीसिपेशन काफी हद तक बेहतर गया। जब मिडिल ईस्ट में डेटा सेंटर पर अटैक हुआ और लगातार वर्ल्ड डीकपल हो रही है, तो हमारा ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट काफी हेल्पफुल रहा है। तो ये पेस्टल का जो टी है टेक्नोलॉजी का, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने में क्या योगदान है वो बताया। एल से लीगल है, पर्टिकुलर किसी कंट्री में लॉ फर्म बिल्डअप करते हैं, जैसे अभी इलाहाबाद में लॉ फर्म को वकालतनामा साइन करने का चलन कम है, दिल्ली में होता है। तो देखिए ये लीगल इन्वायरमेंट इश्यूज है जो
हमारे कस्टमर रिलेशंस को गाइड करता है। हम कस्टमर से जो वकालतनामा लेते हैं अटॉर्नी के जरिए उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये लीगल एक पेस्टल का एल है जो हमारे एक्सटर्नल इश्यूज को रेगुलेट करता है। तो ऐसे ही और भी इसमें नॉमेनक्लेचर मिलेंगे, उसको पढ़िएगा, स्पाइरल करा लीजिएगा, आप लोग जरूर पढ़िए और नॉमेनक्लेचर में ऐसे वर्ड को यूज करिए। तो बहुत मोटा ज्यादा नहीं है, उसको 2 वे पेज करा के जरूर से पढ़े, उस पर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करें। अच्छा होगा कि हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करे 5 मिनट का, ताकि हम ये जान पाए कि इनको क्यूएमएस समझ में आया कि नहीं। क्योंकि FY27 में क्यूएमएस काफी हद तक फर्म उसको एग्रेसिवली अडॉप्ट करने जा रही है और ये हमारी प्रोसेस की कंसिस्टेंसी को बेहतर करेगा। तो ये कारण था इस पे करने का। कुछ क्वेश्चन आ गए होंगे तो काफी वर्क, काफी थ्रॉटल इफेक्ट जनरेट करने में मेहनत करना पड़ रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल सेशन में आपको लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है फर्म का वो मिल जाएगा। मगर आज के ट्रेनिंग सेशन का फीडबैक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट आवर CRO मैम kindly invite our head support officer to receive feedback from his auspicious presence. Over to you, CRO ma'am. Okay. Thank you, sir. Now, time to feedback session. Now, I invite HSO sir to feedback. Am I audible? HSO sir? हेलो। हाँ, सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं काफी देर तक तो थोड़ा सा सुन नहीं पाया, लेकिन बहुत बढ़िया रहा सेशन जो है। और आप लोगों को थैंक यू इस बात के लिए जो है कि सब लोगों ने जो है जो वर्क किया है, टीम वर्क बहुत ही बेहतर किया है। आपका प्रेजेंटेशन तो गुड, तो नाइस। Okay. Thank you, sir. Sir, if you want to give feedback. Yes. Okay. Kindly visible yourself. If you have any privacy, okay. If you have any privacy issue, do not make yourself visible, but speak loudly and fearlessly. Give your feedback. ओके सर। जैसा प्रेजेंटेशन का टाइमिंग होता है उसको प्रॉपर लिमिट में, मतलब टाइम लिमिट के अंदर टाइम एक्सीड ना हो, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट थी। या फिर जो इनविटेशन लेटर में हम लोग टाइम लिखते हैं उसमें टाइम ऐड कर दिया जाए अलग से। Very good. Excellent feedback. Okay. Anybody else? For his feedback, kindly raise his hand or her hand. Sir, it's not feedback from CTO. Okay. बट सब लोग अपनी अगर स्क्रीन विजिबल कर पाए तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं। As much as we can. Okay, take it. Okay. Respected CPO, you are expected to prepare a report of this particular training session. Would it be possible? ओके सर। Okay. Kindly make the screen in unrecorded mode. Our CTO. Okay. I would have hardly 1 minute of informal discussion.